डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone. I hope you all are doing well. Be positive, stay positive, and always ready to learn something new each and every day of our life, right? So let's start some new topic today. Our paper code number 303, which is Management Information System, block 2, which is Internet Tools. Today we are going to discuss about it. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of our BBA course. So let's start with unit number 2, Internet Tools. First of all, introduction and learning objectives. What we are going to learn from this unit. So after going through this unit, you will able to understand about web browsers and web servers. Learn to use email, define search engine, learn to the basics the वर्ल्ड वाइड वेब जो ट्रिपल डब्ल्यू करके है कि www विच इज वर्ल्ड वाइड वेब, डिस्क्राइब द डिफरेंट इश्यूज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें हम आज के यूनिट में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इंटरनेट टूल्स क्या है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट का यूज हमें कैसे करना है। So internet is a kind of network that is built using wires or other wireless medium. It is not limited a few places, but it is a network that is used worldwide and hence the called a international network or a network of networks. जो सारे नेटवर्क्स जो इंटरनेशनल है, नेशनल है, वो सारे नेटवर्क्स जो वायरलेस है, विथ वायर है, सबको हम कहेंगे इंटरनेट। We browse through the internet using the web browser, which is an application software on the computer which we use to access the internet. Web browsers. A web browser is commonly referred to as a browser. It is a software application presenting a retrieving the information and resources, transferring through the resources on World Wide Web. The common web browsers are called a Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera and Safari. So this is the images of web browsers that Google Chrome का जो सिंबल है वो इस तरह से दिखता है, Firefox है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो जो आइकन हमारे डेस्कटॉप पे जो पाए जाते हैं वो आइकन कुछ इस तरह से है कि उसमें हम डबल क्लिक करके इजीली सब एक्सप्लोर कर पाते हैं, विच इज गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा एंड सफारी। The first web browser was invented in 1990 by Sir Tim Berners. It was called a World Wide Web and was later renamed as an Access. Home page is the web page that your browser uses when you start the web page that appears every time you open your browser. मीन्स इस तरह के आइकॉन्स जो डेस्कटॉप पे शो करते हैं उस पर क्लिक करके हम इजीली कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या यूजफुल इंफॉर्मेशन जो एजुकेशनल हो या हेल्थ हो या मेडिकल हो, कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हम उसमें से सर्च कर सकते हैं। ईच वेब पेज हैज़ एन IP एड्रेस and URL. This is indicated in the address bar. If you want to open a web page, then you have to type it address on the address bar. जैसे कोई भी वेबसाइट आपको ओपन करनी है तो उसकी पर्टिकुलर लिंक होती है, पर्टिकुलर उसका वेबसाइट एड्रेस होता है। तो अगर वो एड्रेस आपके पास है और आप गूगल क्रोम में या मोजिला में एंटर करते हो तभी वो वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। तो वेबसाइट एड्रेस जो है वो कंपलसरी है। Most web pages will have a title also. You can check the title pages by looking at the web page title. It is called a title bar. Title bar पे सारी चीजें शो हुई होती है।
The actual web page itself displayed in the main web page window. It is cut off in the pictures above but would normally fill the most of show in the screen. स्क्रीन पे उसका आइकॉन होता है हर एक वेबसाइट का, तो वो आइकन पे क्लिक करके ब्राउज़र में जाके आप कोई भी वेबसाइट या सिंगल वेब पेज या जो बंच ऑफ वेब पेजेस है जिसे हम वेबसाइट कहते हैं उसे इजीली आप एंटर करके सर्च कर पाते हो, एक्सप्लोर कर पाते हो. You can reload the page by hitting the refresh button. You will also update the latest version of this page. मीन्स हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है तो उसमें लेटेस्ट वर्जन आता रहता है, उसमें अपडेट आती है. आपका जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसमें भी आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हो उसे सम काइंड ऑफ आफ्टर सम टाइम स्पान आप में उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आती है, तो आपको वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करना पड़ता है. सो आपको उस अपडेट करने के बाद क्या मिलेगा, तो अपडेट इटसेल्फ टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पेज. लाइक व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हो, इंस्टा यूज़ कर रहे हो, एफबी यूज़ कर रहे हो, कोई भी सोशल साइट है या एजुकेशनल साइट है, वो आप अगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो उसमें नया क्या है, व्हाट्स न्यू, तो वो आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा. देन नेक्स्ट, if a web page takes a long time to load, you can stop loading by hitting the stop button through the search box. You can search any term on the internet. कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पर्टिकुलर उस वर्ड को भी सर्च करोगे तो उसका मीनिंग विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन शो करेगा. This is the kind of web server and client user connectivity. तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सर्वर लिखा है, वो हमारा सर्वर है, वहाँ से इंटरनेट आएगा. तो क्लाइंट जो है उसे डेस्कटॉप पे सर्च करेंगे, लैपटॉप पे सर्च कर सकते हैं, पर्सनल मोबाइल फ़ोन से भी सर्च कर सकते हैं. तो जो सर्वर है उसमें से आप इजीली सारी चीज़ें सर्च कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. वेब server software runs exclusively on server machine, handling on the storage and transmission of documents. In the contrast, client software such as a Netscape, Internet Explorer, etc. runs on the client computer that access the translate and display the documents. A web server is a software package that processes the HTML document for viewing the web browser that runs on the client computers. Web servers can run from any hardware platform. There are servers that are specifically designed for the computers, PC, Silicon Graphics, and various other platforms, including Amiga. It can also run several operating systems, including MS Windows, Windows NT, Unix, Linux, etc. Our next topic is electronic mail. So this is the most mandatory part for this today's scenario. कि कोई भी लीगल चीज़ें हैं या फिर कोई भी जो टर्म्स होते हैं कि कॉरपोरेट टर्म्स या फिर एजुकेशनल टर्म, हर एक टर्म में आज ईमेल का ज़माना है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है वो ईमेल के थ्रू ही करना है. तो ईमेल के एग्जांपल है कि लाइक आप जीमेल यूज़ कर लो, याहू यूज़ कर लो, तो और बहुत सारे हॉटमेल है, तो वो सारे डिफरेंट जो मेल प्लेटफॉर्म है उस पे जाके आप ईमेल से कन्वर्जेशन कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक मेल most commonly referred as a email, or email is a method of exchanging digital messages from a sender to one for another or one to more recipients. Modern email operators across the internet or other computer नेटवर्क्स. तो आगे हम जानेंगे कि ईमेल जो है उसकी मेन स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके टर्म्स क्या है, लाइक सीसी क्या है, व्हाट इज़ बीसीसी, आपको मेल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें लिखा है कि ईमेल इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होगा हेडर. हेडर में आएगा स्ट्रक्चर्ड इनटू अ फील्ड सच फॉर्म as a from to cc subject date other information about the email. Body, the basic content
as a unstructured text sometime contain a signature block at the end. This is exactly the same body to regular letter, common letter, header field email include. सो ईमेल में कौन सी चीज़ें आएगी? तो मेन तो हेडर आएगा कि आपको टाइटल क्या लिखना है, किसको मेल करना है, कौन से कंसर्न का या कौन से सब्जेक्ट का मेल है वो टाइटल में लिखना है. फिर बॉडी में आएगा बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर कि आप किस पर्टिकुलर मैसेज को सेंड कर रहे हो वो सारी चीज़ें आएगी. फिर सब्जेक्ट आएगा. देन BCC एंड CC. BCC इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी. This content the address to the delivery but list but not usually listed in the message data. मीन्स अगर आप BCC में किसी को रख के मेल करते हो तो वो सामने वाले रिसिपेंट को शो नहीं करता है, वो हिडन होता है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसके बीच में जो कन्वर्जेशन होता है वो सारी चीज़ें BCC वाला जो रिसिपेंट है वो देख सकता है बट वो शो नहीं करता है. CC, what is CC? The content, the address added to the delivery listed to the message data. CC में जो ईमेल एड्रेस है वो शो करता है. BCC में जो है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसलिए वो जो ईमेल सेंडर है वो देख सकता है बट उसका ईमेल आईडी शो नहीं करता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर्च इंजिन्स. कौन कौन से सर्च इंजिन्स है? तो द वेब इज क्विकली बिकमिंग अ वास्ट इंफॉर्मेशन space that needs search tools to find information efficiently. The search engines can be defined as a tool created for finding, classifying, storing the information about various websites on internet. This can help in locating information to relevance on particular subject by using the various method. सर्च इंजिन क्या है? तो लाइक गूगल है, याहू है, अल्टा विस्टा है, एक्साइट है, हॉटबॉट है, लिकोज है, ये सारे सर्च इंजिन है. द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन इज गूगल. तो यहाँ पे सारे लोगो दिए हुए हैं, आप देख सकते हो. गूगल का जो लोगो है, याहू का है, अल्टा विस्टा का है, एक्साइट का है, ये सारे आइकन्स है सर्च इंजिन के. Now we are discussing about list of search engine. Google, Yahoo, AltaVista, Excite, Hotbot, Infoseek, Northern Light and Webcrawler. ये these all are the search engines. यहाँ पे एक इमेज शो कर रही है जो वर्ल्ड वाइड वेब को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करती है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. तो वेब पेजेस आएंगे. वेब पेजेस में सारी इंफॉर्मेशन होगी. इजीली मल्टी डाउनलोडर मीन्स मल्टीपल चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो. सारी कोई भी प्रकार की टैग्स एंड डेटा आप स्टोर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो थ्रू द वेब पेजेस. एंड आप अपना शेड्यूल भी उसमें कर सकते हो. जैसे ईमेल है तो ईमेल को भी शेड्यूल किया जा सकता है कि अगर आज आपको 500 या 1000 मेल करने हैं तो आप आज से ही उसका शेड्यूल बना लो कि कल 10 जनवरी को इतने मेल चले जाने चाहिए. तो ईमेल भी शेड्यूल हो सकते हैं और जो हमें चीज़ें इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर की है और आगे हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके एक अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हो. द वर्ल्ड वाइड वेब इज नोन एज अ WWW or W3 or simply the web is one the several internet resource discovery tools developed to help the people publish, organize, provide to access the information on the 263 internet. The web was first developed by Berners-Lee in 1989 while working as a Sun European Particle Physical Laboratory in the Switzerland, and has now become the most powerful popular resource discovery tool on the internet. The WWW can be defined as a hypertext multimedia distributed information system that provides the link to hypertext the document as well as the other internet tools and database. मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब है, उससे आप कोई भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो,
डाउनलोड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती है. बाय नाउ you can imagine that the web documents are referring to each other by link. The simple view is known as hypertext paradigm. The reader sees on the screen a document with a sensitive parts, text representing the links. A link is followed by the pointing and clicking. Now, what is web pages? A web page is nothing but a hypertext document which is suitable. The World Wide Web can be accessed through web browser and displayed on a monitor or mobile device. Web pages are usually written in the HTML and XHTML and many content, static content or dynamic content. Web pages provide the navigation to other web pages via hypertext link, and hypertext is a system of organizing, navigating, distributing and publishing the information electronically. What is web page? So web page is a nothing but set of coding information by HTML. The most popular thing इज HTML से ही वेब पेज बन पाता है. बहुत सारी अलग अलग है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट HTML इज द पॉपुलर. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो स्टडी मटेरियल, जो भी हमारी आम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बैचलर प्रोग्राम्स, मास्टर प्रोग्राम्स एंड अदर प्रोग्राम्स, डिप्लोमा एंड ऑल. तो जो सारे प्रोग्राम्स है उसकी ऑनलाइन बुक मटेरियल उसका अवेलेबल है. तो अगर कोई चीज़ मुझे जाके वहाँ पे रीड करनी है तो मैं स्टडी SLM जो है, स्टडी लर्निंग मटेरियल, उसके थ्रू जाके उसमें सर्च करके मैं इजीली पढ़ पाती हूँ. तो ये एक तरह का वेब पेज ही है. फिर अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में आपको अंदर जाके कोई चीज़ सर्च करनी है, पेज ओपन करना है, तो वो जो पर्टिकुलर पेज आप पॉइंट आउट करोगे और क्लिक करोगे, पेज ओपन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेब पेज. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस. जो एक वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ सो मच थिंग्स एंड सो मच डेटा एंड सो मच पेजेस. एक वेबसाइट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे पेज है, तो अलग अलग पेज से क्या बनती है? एक वेबसाइट बनती है. तो वेब पेज इज अ सिंगल कंटेंट बट वेबसाइट इज अ मल्टीपल सेट ऑफ वेब पेजेस. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई भी वेब पेज आप ओपन करो, चाहे याहू ओपन करो, जीमेल ओपन करो, या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है, तो अगर आपको कोई जॉब मिली है या फिर कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्म फिलअप करना है, तो आप कोई पर्टिकुलर जो वेब पेज है या वेबसाइट है उसके एड्रेस को वेब सर्च इंजन में डालोगे, गूगल में या फिर कोई और में, तो जो पेज ओपन होगा वो आपका पेज ओपन होगा एग्ज़ाम फॉर्म या फिर रिक्रूटमेंट फॉर्म. वो पर्टिकुलर फॉर्म आप फिल करोगे और डेटा सक्सेसफुली उसमें स्टोर हो जाएगा. अगर आपने मान लीजिए कि कोई रिक्रूटमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है कि पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, तो आपने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी फिलअप कर दी, फॉर्म सक्सेसफुली उसमें ऐड हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, एंट्री क्लोज हो गई. फिर आपको जाके पता चला कि मैंने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गलत है, तो वो आप खुद वो एडिट नहीं कर पाओगे. जब वेबसाइट में से जब एक्सेस मिलेगा तब ही आप कर पाओगे. तो लाइक कोई जो एडवर्टाइज होती है उसमें वो लोग अलाउ करते हैं कि आप 150 रुपीज़ या जो पेनल्टी की फ़ी भरो और इसमें आपका जो सीरियल नंबर है वो उसमें एंटर करो और जो चीज़ गलत है उसे सही करो. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है वेब पेज का कि अगर जो वेबसाइट में से आपको एक्सेस मिला वो वहाँ से अलाउ होगा तो ही हो पाएगा. तो यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट.
A web page is a single document on the internet that is linked to the specific URL under respective domain. A website is the collection of the several documents associated with the specific domain. A website is the content that is displayed on website. A website is the place to put and display the content. वेब पेज क्या है कि वेब पेज इज द कंटेंट दैट इज डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट. वेबसाइट पे जो कंटेंट डिस्प्ले होता है उसे हम क्या कहेंगे, वेब पेज. बट वेबसाइट इज द प्लेस टू पुट एंड डिस्प्ले द कंटेंट. वेबसाइट जो है वो अलग अलग वेब पेज का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन होके एक वेबसाइट बनती है. अ वेब पेज यूजुअली कंटेंट्स द कंटेंट रिलेटेड अ सिंगल एंट्री टाइप and a website usually content to related a different entries. For वेब पेज का जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसमें लिखा है कि लॉगिन पेज, साइन अप पेज, अबाउट पेज, कंटेंट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी एट्सेट्रा. तो ये है सिंगल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड अ वेब पेज. एंड एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट देन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्वोरा, विकीपीडिया. देन कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट ले लो, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कोई भी वेबसाइट आप सर्च करो तो उसमें मिलेगा डिफरेंट कंटेंट जो है सेट ऑफ वेब पेजेस विच इज कॉल्ड अ वेबसाइट. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी. व्हाट इज़ इंटरनेट सिक्योरिटी? तो बिफोर आई स्टार्ट हम डिस्कस करेंगे कि आज तो बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं. साइबर अटैक मीन्स उसमें एक इंटरनेट इन्वॉल्व होता है और एक कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है. तो अगर कंप्यूटर और इंटरनेट का जो कॉम्बो होता है उसमें हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ Now we are discussing about internet security. इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी concerns with the security to computer from attacks to related internet. Internet security is the one of the biggest concern of today's internal world. Internet allow to exchange information through the unsecured channel and this may cause attacks like identity theft, data theft, among the many other attacks. These attacks are present even through the different data protection method are being used like encryption and digital signature. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई जगह पे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे गए, वहाँ पे एक बोर्ड लिखा होता है कि फ्री वाईफाई जोन, राइट. तो वो फ्री वाईफाई जोन में जाके आप अपने मोबाइल में जाके कुछ भी चीज़ें सर्फ करते हो, कुछ भी करते हो. मतलब सभी जगह पे ऐसा नहीं होता है बट कोई जो फ्री वाईफाई जोन होते हैं उसमें आप आपके मोबाइल में से सर्च करते हो तो आपके मोबाइल का डेटा उसमें मतलब थेफ्ट ऑफ द डेटा चोरी होने का भय रहता है कि कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल डेटा उसमें से वो उसमें अलाउ सारी चीज़ें, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या कुछ करते हो तो उसमें अलाउ का ऑप्शन आता है. तो जब आप सारी चीज़ें अलाउ करते हो तो उसको परमिशन मिल जाती है कि आपके फ़ोन में या फिर आपके डिवाइस में क्या क्या चीज़ें हैं वो इजीली सर्व कर पाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंटरनेट सिक्योरिटी का मामला है कि इंटरनेट अटैक जो साइबर अटैक्स होते हैं कि अदर टाइप के अटैक्स होते हैं तो उसमें इंटरनेट सिक्योरिटी कितनी टाइट होनी चाहिए और इंटरनेट सिक्योरिटी का आज के ज़माने में क्या इम्पोर्टेंस है. टाइप्स ऑफ अटैक्स: पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक, close in attack and insider attack. These are the types of attack. Now this is like malicious software. Some of the malicious software are used in the performing some of the above attacks to the computer system is listed below. Means ये जो सारे सॉफ्टवेयर है
वो भी एक तरह के सॉफ्टवेयर ही है, बट ये कंप्यूटर को और डेटा, कंप्यूटर के लिए और डेटा के लिए और कोई भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है, लाइक मालवेयर है। तो मालवेयर इज अ शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू द डैमेज सिस्टम, वो सिस्टम को डैमेज करता है। एग्जाम्पल्स आर वायरसेस एंड ट्रोजन हॉर्सेस। देन सेकंड इज वायरसेस, कोई भी प्रकार के वायरस है। तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इंटरनेट सिक्योरिटी प्रॉब्लम वायरस इज अ सॉफ्टवेयर software program returns to the distribute computer system and steal and distribute the data. Then worms, then spyware, then Trojan house, these all are the software, but they are harmful for the computer and data system. एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फेमस टेम्पल है उसकी भी वेबसाइट हैक करते हैं। आज हैकिंग बहुत ही एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि कोई भी वेबसाइट को हैक करो, उसका डेटा ले लो और डेटा लेके फिर वो पैसे कमाओ। और वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, आप लोग मतलब पता ही होगा कि कितना सारा फ्रॉड चल रहा है कि डेटा चोरी करके फिर पूरा एक्सेस ले लेते हैं, फिर पैसे, ये सब। अभी अभी ध्यान में आया है कि अंबाजी टेम्पल, जो बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है गुजरात का, उसकी जो वेबसाइट है उसने हैकर्स को हैक कर ली और जो फंड, ऑनलाइन फंड जो भी जमा करवाते थे, वो लगता था कि टेम्पल के लिए जमा करवाते हैं, बट बीच में से हैकर्स उसमें से हैक करके कितने सारे पैसे का फ्रॉड किया। तो बड़े बड़े मंदिरों की, बड़े बड़े एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट भी हैक होती है और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। तो ये हैकिंग का बहुत बड़ा प्रश्न है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस है वैसे एंटीवायरस भी है। तो हमें तो हमारी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, जितना हो सके मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन वे टू हार्म कंप्यूटर्स एंड सिक्योरिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम from any computer virus attack from internet world. Some of the most well-known antivirus software are Norton antivirus, Avast antivirus. तो ये काम क्या करता है? तो प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर अटैक, साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। डेटा स्टोल जो होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर वाईफाई जोन पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी फ्री वाईफाई जोन है वहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन मत करें, कोई भी बैंकिंग की वेबसाइट ना खोलो, पासवर्ड या कुछ डालो नहीं, तो डेटा आपका डेटा लीक होने का जो भय है उसमें से मैक्सिमम हम ध्यान रख के कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आज के टॉपिक में कि सबसे पहले तो हमने देखा कि वेब पेजेस क्या है, फिर वेब ब्राउज़र्स क्या है। तो जो गूगल है या मोज़िला फायरफॉक्स है, ये सारे वेब ब्राउज़र है, उसमें से जाके आप कोई भी वेब पेज को विज़िट कर सकते हो और इजीली कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एंड इंटरनेट या फिर कोई भी प्रकार का आपको फॉर्म भरना है या एजुकेशन का काम करना है, हेल्थ का काम करना है, प्रीमियम का काम करना है, कोई भी काम आप वेब ब्राउज़र एंड वेब पेज के माध्यम से ही इजीली कर पाते हो। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट टूल्स। थैंक यू। स्वाध्यायः परमं